Now we will go to energy flow. Energy flow. We all know that sunlight is the main source for all organism except where sunlight is not important. Sunlight main source of energy except deep hydrothermal vents. डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स. डीप ओशंस में सनलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है. Then how the organisms of deep ocean they are getting food? Deep oceans they are getting food through detritivores. Usually bottom dwelling organism in oceans they are detritivores. So in deep hydrothermal vents में sunlight important नहीं है. Less than 50% of sunlight is PAR. Less than 50% of sunlight is PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलेंगे इसको. इट इज द लाइट हैविंग वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर. PAR का वेवलेंथ कितना है? 400 to 700 नैनोमीटर लाइट है. This much of light is only carrying for photosynthesis. So that means total sunlight is not required for plants. Total sunlight is not required. Total sunlight का 50%, less than 50% is required for photosynthesis. And plants absorb how much PR? Plants absorb 2 to 10% of PR. And plants convert plants convert 1% of absorbed light. 1% of absorbed light into energy. क्या क्या याद रखेंगे? देखिए, we all know that sunlight is the main source for energy. Ultimate source of energy is sunlight, but there are some places where sunlight is not at all important. Deep hydrothermal vents. Deep hydrothermal vents में light important नहीं है. Light is not required. Then how organisms are getting food there? The deep hydrothermal vents usually contain, yes, what they contain? Deep hydrothermal vents में क्या होता है? डिट्रिटिओर्स होते हैं. डिट्रिटिओर्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में दिया था. देखिए, डिट्रिटिओर्स होते हैं वहां पर. डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको लाइट नहीं चाहिए. दे ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग डेड रिमेन्स. ठीक है. एंड विच कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी? लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करते हैं? प्लांट्स. प्लांट्स आर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड प्लांट्स मेक एनर्जी अवेलेबल टू एनिमल्स. हमें एनर्जी कैसे मिल रही है? प्लांट्स के थ्रू मिल रही है. और प्लांट्स को कैसे एनर्जी मिल रही है? सनलाइट के थ्रू मिल रही है. तो यहां पर रिमेनिंग एवरीथिंग इज
एंट्रोपी, सिर्फ 1% absorb energy is converted into absorb light energy into chemical energy and remaining everything is entropy. Entropy मतलब loss of heat. The major disorder of the system. Nobody is 100% efficient. कोई भी 100% efficient नहीं है, इवन प्लांट्स भी 100% efficient नहीं है, ठीक है. And one more thing written in our book, ecosystem are not exempted from the laws of thermodynamics. From the laws of क्या मतलब इसका? थर्मोडायनामिक्स के जो लॉज हैं वो लॉज इकोसिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल हैं या नहीं है? क्या लिखा हूं मैं बोर्ड पे? नॉट एग्जेम्प्टेड का मतलब दैट मीन्स इकोसिस्टम आल्सो ओबेज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इकोसिस्टम भी नहीं बच सकते लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स से. नॉट एग्जेम्प्टेड मतलब इकोसिस्टम भी ओबे करेगा laws of thermodynamics. What are the laws of thermodynamics? First law क्या है? Law of conservation of energy. Law of conservation of energy है. Energy neither be created nor be destroyed, but energy converted from one form to another form. The same rule. एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ एनर्जी ट्रैवल हो सकती है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. लॉ ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम. What is law of disorder of the system? हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी खराबी क्या है? एंट्रोपी है, लॉस ऑफ हीट. लॉस ऑफ हीट. Nobody is efficient because of the second law. Second law says nobody convert 100% one form of energy into another form of energy. 100% efficiency is not present anywhere. It is not present anywhere. Second law of thermodynamics बोल रहा है disorder of the system. हमारे सिस्टम में क्या है मेजर डिफेक्ट? प्लांट्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स क्या कर रहे हैं? They are absorbing energy. Suppose if plant is having 100 kilocalories energy, if you eat it, एनिमल खाता है अगर इतनी 100 किलो कैलोरीज एनर्जी, whether animal get total 100 किलो कैलोरीज? No, animals get only 10 किलो कैलोरीज. अगर प्लांट में 100 किलो कैलोरीज है तो एनिमल को सिर्फ 10 किलो कैलोरीज मिलेगा. 90 किलो कैलोरीज क्या हो जाएगा? एंट्रोपी हो जाएगा. एंट्रोपी, लॉस ऑफ हीट. लॉस ऑफ हीट. एंड यू नो वेरी वेल, मेरे से ज्यादा जानते होंगे आप, एंथैल्पी. एंथैल्पी प्लांट में क्या होती है? एंथैल्पी होती है, प्लांट में होगी एंथैल्पी. एंड व्हेन एंथैल्पी इज फ्लोइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देयर विल बी लॉस ऑफ एंट्रोपी. टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी. और जब एनर्जी फ्लो करती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एंट्रोपी, है ना. जब एग्जामिनर स्टेटमेंट बनाता है ना तो एंथैल्पी एंट्रोपी पे जरूर है ना क्वेश्चन बना सकता है स्टेटमेंट में. प्लांट्स हैव एंथैल्पी, but whenever energy is flowing from one system to another system, there will be a major heat loss called entropy. पढ़ने में गलती कर लेते हैं हम फास्ट, एंथैल्पी को एंट्रोपी पढ़ लिए तो चला गया.
सो व्हाट इज द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम? एंट्रोपी। अभी बताया ना मैं एंट्रोपी का एग्जांपल। इफ यू आर ईटिंग ए प्लांट हैविंग 100 किलो कैलोरीज एनर्जी, यू विल गेट ओनली 10 kilo calories energy, remaining everything is lost. So that means ecosystem also are not exempted from laws of thermodynamics. आप फिजिक्स में पढ़े होंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लीकेबल टू नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, सब पढ़े होंगे। इवन लिविंग थिंग्स आर आल्सो नॉट exempted from the law of thermodynamics. Living things are also obeying law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो है, रिमेंबर वन साइंटिस्ट नेम हियर लिंडमैन। लिंडमैन प्रपोज्ड 10% लॉ। 10% लॉ जो है लिंडमैन, क्या है ये 10% लॉ? अगर ग्रास में 20 जूल्स एनर्जी है, 20 जूल्स है या किलो कैलोरीज है, तो ग्रास हॉपर में कितनी जाएगी, फ्रॉग में कितनी जाएगी, स्नेक में कितनी जाएगी, ईगल में कितनी जाएगी? अगर ग्रास में 20 जूल्स एनर्जी है तो इसका सिर्फ 10% ग्रास हॉपर में जा सकता है, एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब इसका 10% बोलो, 2 जूल्स ग्रास हॉपर में जाएगा। अब ग्रास हॉपर को 2 जूल्स मिली तो फ्रॉग को कितनी मिलेगी? 0.2 जूल्स मिलेगी। अगर फ्रॉग को 0.2 जूल्स मिल रही है तो स्नेक को कितनी मिलेगी? 0.02 जूल्स हो जाएगी। फिर ईगल को कितना मिलेगा? 0.002 जूल्स। 10% लॉ है। 10% लॉ, सिर्फ 10% एनर्जी ऊपर जा रही है। अगर ये 10 किलो कैलोरीज है तो ये 1 किलो कैलोरी है, ये 0.1 किलो कैलोरी है, ये 0.2 है, ये 1 किलो कैलोरी है, तो ये कितना है? 0.01 है, ये 0.1 है, ये 0.01 है, और ये 0.001 है। मतलब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए, हो सकते हैं पॉसिबल। 10% लॉ के ऊपर क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं। अगर ग्रास में इतनी एनर्जी है, कुछ भी देके आपको पूछ सकते हैं स्नेक में कितनी एनर्जी है बोल के पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट, अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर ये 20 जूल से 2 जूल ग्रास हॉपर को जा रहे हैं तो 18 जूल्स कहाँ हैं? लॉस्ट एज हीट, एवरी स्टेप लॉस्ट ऑफ हीट। हर स्टेप में हीट लॉस, हर स्टेप में हीट लॉस, एवरी स्टेप में हीट लॉस होने ही वाली है। ठीक है। नाउ पोजीशन ऑफ ये जो प्रोसेस है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर्स, प्रोसेस ऑफ ईटिंग, process of eating and being eaten by others। या तो आप खाते रहो या नहीं तो आप किसी और का खाना बन जाओ। या तो आप खाते रहो या नहीं तो आप किसी और का फूड बन जाओ। दो चॉइस है आपके पास। ठीक है। एनर्जी अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते, आप स्टोर करके नहीं रख सकते। या तो आप प्रीडेटर बन सकते हैं या तो आप प्रे बन सकते हैं। दो चॉइस है आपके पास। व्हाट डू यू लाइक, प्रीडेटर और प्रे? हाँ, प्रीडेटर बनना है तो आपको दूसरों को खाना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय अदर इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन बोलेंगे, food chain। and who is having very less energy here? Eagle।
Eagle is having very very less efficiency of getting energy. That's why eagle has to eat so many things in one day. Eagle is having very very less efficiency of getting energy. That's why eagle has to eat so many things. Eagle is eating one snake. तो चल जाएगा क्या एक दिन में? नहीं, ईगल को स्नेक भी खाना होगा, फिश भी खाना होगा, और एक स्नेक खाना होगा, बहुत सारी चीजें खाना होगा. एक से नहीं चलेगा काम, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत कम है. जितना प्लांट से दूर जाएंगे आपकी एफिशिएंसी कम होगी. आप जितना प्लांट के करीब रहेंगे यू विल गेट मोर एनर्जी. ठीक है. अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी हैं तो एटलीस्ट फूड चेन के लोअर ट्रॉफिक लेवल में रहना चाहिए. आप हाइयर ट्रॉफिक लेवल में नहीं जाना. अब क्वेश्चन ये भी पूछा है वेदर ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज मीन बाय ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल क्या है? पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन फूड चेन. याद रखो, पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है. कोई डेड रिमेन को हम पोजीशन नहीं देने वाले हैं यहां पर. ट्रॉफिक लेवल इज अलॉटेड फॉर ऑर्गेनिज्म. एंड ग्रास इज T1, ग्रास हॉपर इज T2, फ्रॉग T3, स्नेक T4, ईगल T5. ये ट्रॉफिक लेवल. तो क्वेश्चन ये है वेदर ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड और अनलिमिटेड. क्या T10 तक भी जा सकते हैं हम? T6, T7, T8, T9 ऐसा भी आ सकता है क्या? हाँ. यूजुअली ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड. यूजुअली ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड 4, 5, 6. यूजुअली ट्रॉफिक लेवल आर लिमिटेड 4, 5, 6 तक जा सकते हैं. अनलिमिटेड ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते. अनलिमिटेड क्यों नहीं हो सकते? आपको देखो, इधर हम यहां से शुरू करे थे ग्रास में 20 जूल्स. तो यहाँ पे कितनी गई थी एनर्जी? 0.002 जूल्स. अब उसके ऊपर भी अगर कोई जाएगा तो 0.0002 जूल्स हो जाएगी. मतलब एनर्जी बहुत कम है. राइट. इफ यू गो T6 बोल तो बहुत कम हो जाएगी ना एनर्जी. नेग्लिजिबल हो जाएगी एनर्जी वो. So that's why traffic level are limited. Question is why traffic levels are limited? Traffic levels are limited because in every step there is a major loss of heat entropy. In every step major loss of heat as entropy. Suppose यहाँ पे क्वेश्चन है Mr. Rahul is eating curd. What is his trophic level? Trophic level मालूम करो. Mr. Rahul is eating curd. तो what is the trophic level of Rahul? क्या लेंगे? पहले ग्रास. ग्रास से शुरू करेंगे. उसके बाद काउ. उसके बाद मिल्क. क्या लिखेंगे? यहाँ पे मिल्क नहीं लिख सकते आप बिकॉज ट्रॉफिक लेवल इज अलॉटेड फॉर ऑर्गेनिजम्स. लैक्टोबैसिलस को भी कोई पोजीशन हम नहीं देंगे यहाँ पर. लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया, फंगाई, इन सब को कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं अलॉट करे हम लोग. तो इसलिए ग्रास को T1 देंगे, काऊ को T2 देंगे, और ये कर्ड को कोई नहीं देना है ट्रॉफिक लेवल. सीधा राहुल आ रहा है इधर कर्ड खाने के लिए, तो T3 हो गया. समझ गए? लैक्टोबैसिलस को कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं देना है. कुछ बच्चे ऐसा भी सोचेंगे लैक्टोबैसिलस को भी है ना कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं देना है. Decomposers, bacteria, fungi, they are not given any trophic level.
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड चेन? टाइप्स ऑफ फूड चेन कितने हैं? So food chain are two types, GFC and DFC. GFC क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन है. DFC is detritus food chain. This is grazing food chain. And what is DFC? Detritus food chain. So GFC begin कहां से होता है? Begins with a live plant. एक प्लांट से शुरू होना चाहिए GFC. एक प्लांट से ग्रास, like that. Begins with a live plant. GFC. DFC begins with a dead matter. डेड मैटर से शुरू होता है DFC. GFC का एग्जांपल दो. ग्रास गोट मैन. ग्रास गोट मैन. और DFC का एक एग्जांपल बोलो. डेड ओक लीफ. डेड ओक लीफ. अगर कोई एक डेड ओक लीफ है, एक डेड प्लांट का लीफ है, और उसको खाने के लिए आया है अर्थवर्म, और अर्थवर्म को खाने के लिए आया है फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक आ गया, स्नेक को खाने के लिए ईगल आ गया. सो यहाँ पे GFC में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसको देंगे? ग्रास. गोट को T2, मैन को T3. DFC में ट्रॉफिक लेवल 1 कौन है? अर्थवर्म को T1 बोलना है, फ्रॉग को T2 बोलना है. इधर you should not give any position to the dead oak leaf. DFC में जो डिट्रीटस होता है, स्टार्टिंग डेड मैटर होता है, for that dead matter there should not be any given trophic level. What is trophic level? Position of organism. और dead oak leaf कोई organism थोड़ी है. डेथ होने के बाद organism नहीं बोलते, डेथ होने के बाद डिट्रीटस बोलते हैं. and detritus is not given any position or trophic level. Okay, clear hai? And remember, GFC act as major conductor of energy flow in aquatic ecosystem. See, both the food chain are present in both the places, aquatic places and terrestrial places. पहले ये याद रखो, terrestrial places में GFC भी है, DFC भी है. You may be a part of GFC, you may be a part of DFC, and major time you are a part of DFC. Major time you are a part of DFC because you are taking vegetable and then you are killing vegetable, boiling vegetable and then eating vegetable, है ना? So that means you are eating dead plant. You are not eating live plant. If you are eating live tomato or live carrot or radish, that time you are a part of GFC. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप GFC में नहीं आएंगे. Human can be a part of GFC or DFC, both. But question is, question क्या है यहाँ पे? Major conductor of energy flow, very very important in aquatic ecosystem. In aquatic में बोलना है आपको. मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वाटिक सिस्टम क्या है? GFC. DFC नहीं बोलूंगा मैं उधर, क्योंकि वाटर डेड बॉडीज, वहां वाटर में भी डिकम्पोजिशन होता है लेकिन स्लो डिकम्पोजिशन होता है. डिकम्पोजिशन इज वेरी फास्ट इन मॉइस्ट कंडीशन. वार्म कंडीशन कल ही लिखे नहीं,
मॉइस्ट कंडीशन, वार्म कंडीशन में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। एंड वेयर डू यू फाइंड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन? इन एक्वाटिक प्लेसेस और टेरेस्ट्रियल प्लेसेस? टेरेस्ट्रियल प्लेसेस में मिलेगा। सेम क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको, मेजर कंडक्टर ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल सिस्टम पूछेंगे तो डीएफसी। जैसे मैं बताया आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ए पार्ट ऑफ डीएफसी, मोस्ट ऑफ द टाइम। whether a human eat dead chicken or live chicken? A dead chicken, that's all. डेड चिकन थोड़ी टाइगर है कच्चा खा लिया वैसा। तो डीएफसी मोस्ट ऑफ द टाइम डीएफसी में आएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन टेक्स्ट बुक, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी, most of the organisms of DFC act as prey for GFC organisms। कई बार ऐसे होगा डीएफसी और जीएफसी कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। वो कैसे? देखो, एक डिट्रीटस था, डेड बॉडी थी या कुछ था, डिट्रीटस को खाने के लिए अर्थवर्म आया, ये चल रहा था, देखो डीएफसी चल रहा था ये, और यहां पे ऊपर चल रहा था ग्रास, ग्रास को खाने के लिए ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। तो यहां पे क्या हो रहा है, अर्थवर्म को खाने के लिए फ्रॉग आ रहा है, frog can eat earthworm. Even earthworm can also be eaten by sparrow, or sparrow can be eaten by snake. ऐसा भी हो सकता है। तो क्या लिखा मैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी, डीएफसी के ऑर्गेनिज्म जीएफसी के ऑर्गेनिजम्स कनेक्टेड रहेंगे इन फूड रिलेशन। Earthworm is a part of DFC, but it can go in GFC if a frog comes and eat earthworm। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। स्टेटमेंट के लिए रेडी रहना है हमारे को। GFC and DFC both are interconnected. At some places they are interconnected बोल के याद रखना है। 10% लॉ बिल्कुल अप्लीकेबल है भाई। 10% law is applicable to GFC, 10% law is also applicable to DFC। applicable। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब डिट्रीटस में कुछ थी एनर्जी, 10 किलो कैलोरीज एनर्जी थी, अर्थवर्म को मिली 1 किलो कैलोरीज, फ्रॉग को मिली 0.1 किलो कैलोरीज एनर्जी। अगर फिर यहाँ जीएफसी में देखें, यहाँ अगर 20 किलो कैलोरीज एनर्जी है ग्रास में, तो यहाँ पे 10 किलो कैलोरीज, और फ्रॉग को कितनी मिली, 0.2 किलो कैलोरीज। अगर फ्रॉग अर्थवर्म खा रहा है तो 0.1 किलो कैलोरीज, फ्रॉग ग्रास हॉपर खा रहा है तो 0.2 किलो कैलोरीज। वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कैसा देना है आंसर हमारे को। ठीक है, दोनों खाएंगे तो दोनों मिला के देंगे एनर्जी। What is the trophic level of sparrow? स्पैरो देखो बर्ड है, स्पैरो बर्ड ईटिंग सीड्स एज वेल एज इंसेक्ट्स। सीड्स भी खा रहा है, इंसेक्ट्स भी खा रहा है स्पैरो। स्पैरो इज ईटिंग सीड्स एज वेल एज इंसेक्ट्स, हेंस नो फिक्स ट्रॉफिक लेवल। नहीं है, फिक्स नहीं है, ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है। स्पैरो जो है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। कैसा बताएंगे ट्रॉफिक लेवल? ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल
A person is eating at lunch. At lunch, he is eating rice, curd, ghee, and some crabs along with salad. That means his trophic level is keep on changing at the same time. सेम टाइम कई ट्रॉफिक लेवल में हो सकता है. ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल फिक्स ही नहीं है. नो फिक्स ट्रॉफिक लेवल. और इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ओमनीओर्स. ओमनीओर्स, नो फिक्स ट्रॉफिक लेवल. ओमनीओर्स. अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, जैसे कैट है, तो कैट जो है मिल्क भी ड्रिंक करती है, कैट जो है रैट भी खाती है, कैट राइस भी खा लेती है, तो ओमनीओर है वो. ओमनीओर का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं रहता. कैट कार्नियोर है, ओमनीओर है. ऑर्डर उसका कार्नियोरा होगा, लेकिन बना दिए तुम लोग उसको ओमनीओर. समझे? डॉग भी होता है वैसा ओमनीओर बोल दो. तो अगर हमारे को सपोज एक ट्रॉफिक लेवल अलॉट करना है मेरे को, ह्यूमन का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं है, बोला मैं फिक्स नहीं है. ओके, एक फिर भी मेरे को एक अलॉट करना है, ऑप्शन में दिया ही नहीं, T1, T2, T3, T4. ह्यूमन ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो बुक में बताया, हमारे एनसीईआरटी में बताया, ह्यूमन को हमेशा टॉप ट्रॉफिक लेवल में रखना, सबसे टॉप. लॉयन, ह्यूमन, ये है टॉप कार्नियोर्स. टॉप कार्नियोर्स हैं, टॉप ट्रॉफिक लेवल में रखना है इनको. समझे? ह्यूमन क्या नहीं खाता ये बोलो? हाँ, स्नेक, बर्ड्स, एनीथिंग. सो एक इंडिविजुअल की पर्सन एग्जाम्पल मत लो, है ना. डोंट टेक यूर एग्जाम्पल. सबका एग्जाम्पल लेना है, सारे ह्यूमन का एग्जाम्पल लेना है, तो टॉप कार्नियोर में रखना है. फिशेस का ट्रॉफिक लेवल क्या रखेंगे हम? फिशेस का केस भी अलग ही है. लार्ज फिशेस आर ईटिंग स्मॉल फिशेस, so that's why fishes are also not having fixed trophic level. फिशेस का भी. ओके, एनी हाउ, ये बातें समझने आ गए. अभी देखिए और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इधर. व्हाट इज मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप? व्हाट इज मीन बाय स्टैंडिंग स्टेट? स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग स्टेट. स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास, टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास available at a trophic level, available at a trophic level. एक ट्रॉफिक लेवल में टोटल एनर्जी कितनी है? एक ट्रॉफिक लेवल में टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास अवेलेबल एट ए ट्रॉफिक लेवल. सो डोंट कंसिडर हियर क्रॉप बोले तो कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, क्रॉप बोले तो प्लांट्स, ऐसा सोचेंगे शायद, बट दे आर थिंकिंग इन रॉन्ग वे. यहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो कौन सा भी ट्रॉफिक लेवल हो सकता है, T1, T2, T3, T4. ओके, मैनी स्पीशीज कम अंडर वन ट्रॉफिक लेवल. अगर ह्यूमन T3 बन रहा है तो क्या सिर्फ ह्यूमन अकेले T3 बन रहा है? सो देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिजम्स हु आर आल्सो T3. सो एक बायोमास, जितना बायोमास होगा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में एट ए गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग स्टेट क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ inorganic matter, inorganic matter present in a given soil in a given period of time.
गिवन सॉइल, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम में एक सॉइल में, एक पर्टिकुलर एरिया के सॉइल में कितना इनऑर्गेनिक मैटर है, टोटल इनऑर्गेनिक मैटर present in a given soil in a given period of time. So that means standing crop is for total biomass, standing crop is for biomass, standing state is for inorganic nutrients. अब हम जा रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़ने के लिए। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनको है ना अल्टॉन बोलकर साइंटिस्ट है, अल्टॉन नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड जो है हम तीन चीजों के लिए बना सकते हैं, नंबर के लिए, बायोमास के लिए, एनर्जी के लिए। नंबर के लिए, बायोमास के लिए, एनर्जी के लिए। ecological pyramid of number, ecological pyramid of biomass, ecological pyramid of energy, ऐसा बना सकते हैं हम। let's try to draw pyramid of number। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको, सिर्फ बुक की तरह सोचेंगे तो नहीं आएगा समझने। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के लिए अगर पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ कर रहे हैं आप, पिरामिड ऑफ नंबर मतलब मैं ग्रासलैंड जाना, ग्रासलैंड जाके कितने ग्रासेस हैं काउंट करना, कितने ग्रास हॉपर हैं, कितने हर्बियोर हैं वो काउंट करना, कितने कार्नियोर हैं काउंट करना, एक पूरा एक पिरामिड बनता है। सो हमेशा पिरामिड में बॉटम ऑफ द पिरामिड इंडिकेट प्रोड्यूसर, बॉटम इंडिकेट प्रोड्यूसर्स, उसके ऊपर जो आएंगे प्रोड्यूसर मतलब T1, उसके ऊपर जो आएंगे हर्बियोर आएंगे जो प्लांट खा रहे हैं वो T2 आएंगे। उसके ऊपर कौन आएंगे, प्राइमरी कार्नियोर, प्राइमरी कार्नियोर आएगा जो हर्बियोर को खा रहा है वो T3 बन जाएगा। उसके ऊपर सेकेंडरी कार्नियोर आएगा जिसको मैं T4 बोल रहा हूं। एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि नेचर में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं सबसे ज्यादा नंबर में, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा रहेंगे बट नॉट ऑलवेज, एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन देखेंगे हम आगे। और नंबर देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बॉटम यहां पर ज्यादा है, प्रोड्यूसर दिख रहा है, विड्थ ज्यादा है बॉटम, फिर हर्बियोर उससे कम है, प्राइमरी कार्नियोर उससे कम है, उससे कम सेकेंडरी कार्नियोर है। अब पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड ड्रॉ करें हम ग्रासलैंड के लिए, तो ये रहा प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। से फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोड्यूसर आपको कुछ है ना यहाँ पे मिला, समझो कुछ 5,82,000 कुछ भी एक नंबर, प्लांट्स कितने मिले 5,82,000, नॉट ओनली दिस नंबर, यू कैन राइट एनी नंबर। तो प्राइमरी कंज्यूमर इससे ज्यादा रहना या इससे कम रहना चाहिए? देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी प्लांट्स, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बियोर, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो प्लांट खा रहा है, हर्बियोर मतलब ये नंबर कितना लिखूं, मोर देन 5,82,000,
लेस देन 5 लाख कितना लेस करूं? कुछ तो भी ऐसा रूल है क्या इधर? नहीं है, रूल नहीं है, यू कैन रिड्यूस इट। 3 लाख, 3,80,000 लिख दिया मैं। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एक 10,000 आ गया समझो, और उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 3 ही है समझो, जस्ट 3। जितना आप ऊपर जाएंगे टॉप कार्नियोर सबसे कम होते जाएंगे। वेदर ए फॉरेस्ट इज हैविंग मोर टाइगर और मोर हर्बियोर्स, मोर हर्बियोर्स होते हैं। टाइगर का नंबर क्या होता है फॉरेस्ट में? 10, 20, 30, 40, 100, उससे ज्यादा क्या रहेगा? टॉप कार्नियोर का नंबर कम होते जाना चाहिए। सो देयरफॉर बेस इज ब्रॉड, apex is narrow, therefore it is called upright pyramid। अपराइट कब बोलना चाहिए? अपराइट पिरामिड का मतलब है बेस ब्रॉड। देखो बेस ब्रॉड दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, और एपेक्स कैसा दिख रहा है आपको? नैरो दिख रहा है ना एपेक्स, तो डेफिनेटली ऐसे पिरामिड को आप अपराइट ही बोलो। बस इतना ही है। आपको जो है एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड इज अपराइट टाइप। ये नंबर कुछ भी नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है? या नहीं तो हो सकता है पिरामिड ड्रॉ करके पूछेगा आपको, ये कौन सा पिरामिड है बोल के बोलना वहां पर भी। नेक्स्ट लेट्स ड्रॉ वन मोर पिरामिड, pyramid of number for one tree ecosystem। वन ट्री ecosystem के लिए ड्रॉ कीजिए pyramid of number for one tree ecosystem। ड्रॉ इट। वन ट्री है समझो, one tree है, and upon this one tree there are some, one tree है, upon this one tree कुछ है ना 100 birds रहते हैं, 100 birds रहते हैं, और वो 100 नहीं, पहले birds, insects भी लिख सकता हूं मैं, birds भी लिख सकता हूं, ओके? 100,000 इंसेक्ट समझ लो, 1000 इंसेक्ट्स हैं, उसको खाने के लिए 100 बर्ड्स आए हैं। फिर बर्ड्स को खाने के लिए यहाँ पर अगर वन ट्री है, 1000 इंसेक्ट्स हैं, ओके। फूड हैबिट अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर अगर 100 बर्ड्स हैं और 100 बर्ड्स के ऊपर 1000 पैरासाइट हैं, 1000 पैरासाइट हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट हैं, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट हैं, रहते ना स्मॉल इंसेक्ट्स, फ्लीज, माइट्स, है ना, एक्टो पैरासाइट होते हैं बर्ड्स के ऊपर। फिर वो 1000 पैरासाइट के ऊपर 10,000 हाइपर पैरासाइट है। व्हाट इज हाइपर पैरासाइट? पैरासाइट अपॉन पैरासाइट, पैरासाइट विच इज पैरासाइट अपॉन अदर पैरासाइट। जैसे कि बर्ड है, बर्ड्स के ऊपर टिक्स बोल के इंसेक्ट हैं, और टिक्स के अंदर बैक्टीरिया है, सपोज टिक्स के अंदर बैक्टीरिया है, समझे? जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के हेड पर लाइस है, लाइस के अंदर बैक्टीरिया है। लाइस एक पैरासाइट हो गया, और लाइस के ऊपर और एक पैरासाइट क्या हो गया? हाइपर पैरासाइट हो गया। अगर यहां पर मैं 1000 इंसेक्ट भी लिखता और 100 बर्ड भी लिखता,
तो भी बेस नैरो ही होता है, जैसा हम पहले ट्राई कर रहे थे 1 ट्री, उसके बाद मैं बोला 1000 इंसेक्ट्स, उसके बाद 100 बर्ड्स, थोड़ा विड्थ कम हो गया, फिर उसके ऊपर पैरासाइट, उसके ऊपर हाइपर पैरासाइट। अगर ऐसा भी होता है पिरामिड तो भी बेस नैरो ही है। बेस नैरो, एपेक्स ब्रॉड। बेस नैरो, एपेक्स ब्रॉड अगर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे ऐसे पिरामिड को? इन्वर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड पिरामिड बोलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी देयर, they can ask what is the pyramid of number for one tree ecosystem, they can ask inverted, answer is inverted. Or they can ask question, what is the pyramid of parasitic food chain? ये पैरासाइट है, देखो पैरासाइटिक फूड चेन के लिए पिरामिड अगर मैं ड्रॉ करूं कैसे दिखेगा? इन्वर्टेड ड्रॉ कर, या वो क्वेश्चन बना सकता है, देयर इज 1 ट्री, 100 बर्ड्स, 1000 पैरासाइट एंड 10,000 हाइपर पैरासाइट, व्हाट इज द टाइप? इन्वर्टेड। हाँ बोलो। यहां पर हाइपर पैरासाइट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, डिकम्पोजर के लिए कोई ट्रॉफिक लेवल नहीं है, पैरासाइट अगर है तो ट्रॉफिक लेवल है। नॉट ओनली बैक्टीरिया, अगर कोई और हाइपर पैरासाइट है, पैरासाइट के अंदर और पैरासाइट है, नॉट ओनली बैक्टीरिया, नॉट ओनली फंगई, इसलिए हाइपर पैरासाइट बोल के लिखे हैं। तो ये होगा पिरामिड ऑफ नंबर फॉर 1 ट्री इकोसिस्टम। अब जो है पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वाटिक सिस्टम, मैं आपको नंबर दे देता हूं, आप ट्राई करो। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है 10 kg है, प्राइमरी कंज्यूमर 60 kg है, सेकेंडरी कंज्यूमर 80 kg है। इसका पिरामिड बनाओ और कौन सा टाइप है बोलो। अगर इसका मैं पिरामिड बनाऊंगा तो हमेशा प्रोड्यूसर बॉटम में ही रखना चाहिए ना। प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 kg, प्राइमरी कंज्यूमर 60 kg, सेकेंडरी कंज्यूमर 80 kg. What is the pyramid of biomass for aquatic system here? It is inverted type. Inverted type, इतना याद रखना है, देखो inverted. एक्वाटिक के लिए अगर आप ड्रॉ करेंगे, एक्वाटिक सिस्टम में प्लांट्स का वेट कम होता है, बिकॉज एक्वाटिक सिस्टम कंटेन algae, स्मॉल प्लांट्स, ऐसा ह्यूज ट्रीज तो नहीं होते ना एक्वाटिक सिस्टम में। सो टोटल वेट पीपी, व्हाट इज पीपी? प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स, दे आर लेस इन वेट इन टोटल रिवर। अगर यही क्वेश्चन बदल देंगे यहाँ पे, फॉर ट्राई पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए ड्रॉ करो भाई। इसका मतलब ये हुआ पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट, कैन बी इन्वर्टेड। सही है नहीं? नंबर के 2 ड्रॉ करें ना आप, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर 1 ट्री इकोसिस्टम। नंबर के 2 ड्रॉ करेंगे, बायोमास के 2 ड्रॉ करेंगे, बायोमास का एक एक्वाटिक ड्रॉ करेंगे, एक टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के लिए ड्रॉ करेंगे। तो फॉरेस्ट में ऑब्वियसली लॉजिकली कोई भी बोल सकता है फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जो है प्लांट्स ही होते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर।
प्राइमरी प्रोड्यूसर कुछ हो गया, यहाँ 10,000, यहाँ पे 8,000, यहाँ पर 800, यहाँ पे 500. आई शुड मेंशन सम यूनिट हियर. क्यों? लास्ट क्वेश्चन में भी यूनिट दिया था मैं, केजी बोल के. यूनिट देना जरूरी है. अगर यूनिट नहीं लिखे आप तो ये पिरामिड ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं आप. अगर मैं यूनिट नहीं लिखा तो इसको पिरामिड ऑफ नंबर ही बोलूंगा मैं. और इसको ड्राई वेट, अगर ड्राई वेट लिखेंगे, यहां पर ड्राई वेट किलोग्राम में लिख रहा हूं मैं, ड्राई वेट किलोग्राम, तो ये अपराइट हो जाएगा. देयरफॉर इट इज अपराइट. समझे? अगर हम यूनिट नहीं देखे, समझो ड्राई वेट बोल के नहीं देखे, तो ये आपको लगेगा ये तो नंबर का भी पिरामिड ऐसी था. पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड. नंबर थोड़े बहुत बदले हुए थे, मैं तो बोल रहा हूं नंबर कुछ भी लिख सकते हैं इधर. 10,000 लिखो, 20,000 लिखो, बट ऑर्डर ऊपर जाते होगा डिक्रीज होते जाना चाहिए. दैट मीन्स बस इतना समझ के रहना है, क्वेश्चन बदल सकता है. पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट नहीं होता. पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एनी एक्वाटिक सिस्टम शुड बी इन्वर्टेड. बायोमास का पिरामिड एक्वाटिक सिस्टम के लिए इन्वर्टेड होना चाहिए. बायोमास का पिरामिड टेरेस्ट्रियल सिस्टम के लिए अपराइट होना चाहिए. एंड pyramid of energy, pyramid of energy always upright, always upright, कभी भी inverted नहीं हो सकता ये. It is always upright. Pyramid of energy always upright. So I'm not going to write for forest, aquatic. It is always upright energy. तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर. सपोज यहां पर कुछ 10,000 किलो कैलोरीज एनर्जी है, तो यहां पर कितने मिलेगी? वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलोस 10% लॉ. Pyramid of energy follows 10% law. Number is not following, biomass is not following 10% law. Pyramid of energy 10% law follow कराना. 10,000 बोलते इसको 1,000 ही देना, इसको 100 ही देना, इसको 10 देना. 10% लॉ. मैं क्या बोला आपको? पिरामिड ऑफ नंबर में 10% लॉ नहीं होता है. बायोमास में भी 10% लॉ नहीं, एनर्जी के लिए 10% लॉ है. ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट, देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है. एक मैन जो है प्योर वेजिटेरियन है एंड ही इज ईटिंग ओनली कर्ड एंड राइस, तो उसका ट्रैफिक लेवल क्या रहता? T3. T3 रह रहा उसका ट्रैफिक लेवल. ट्रैफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीशीज लेवल एज सच. अगर कोई ह्यूमन T3 में आ रहा है, इसका मतलब सारे ह्यूमन T3 में आएंगे नहीं बोल सकते आप. एक ह्यूमन कोई और ह्यूमन स्नेक खाता है, उसका ट्रैफिक लेवल कहाँ की चले जाता? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक. T4 बन गया उन्हें. एक बुक में लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट
फंक्शनल लेवल, क्या खा रहे हैं भाई आप, क्या खा रहे हैं आप, उस पर डिसाइड कर रहा है। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीशीज लेवल। अगर आप T3 हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ह्यूमन T3 हैं। आप सिर्फ कैरेट खाते होंगे, फ्रेश कैरेट्स, रेडिश खाते होंगे, सलाद खाते होंगे, लेकिन इसका मतलब आपका ट्रॉफिक लेवल T2 है तो दूसरों का भी T2 नहीं हो सकता। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीशीज लेवल। ड्रॉबैक्स ऑफ ecological pyramids। ड्रॉबैक्स ऑफ ecological pyramid देखिए, नंबर 1 ड्रॉबैक, not given position, not given position for decomposers, not given position for decomposers or saprophytes। सैप्रोफाइट डिकम्पोजर के लिए पोजीशन नहीं दिया यहां पर। इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ कर रहा था मैं, नंबर हो या बायोमास हो, कहां तो बोला कि मैं ये डिकम्पोजर इतना नंबर है बोल के। नॉट गिवन पोजीशन फॉर डिकम्पोजर। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड कैनॉट एक्सप्लेन belonging of one organism to more than one trophic level, जब आप इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं, ह्यूमन को कहां रखेंगे? तो आप बोलेंगे कुछ ह्यूमन T2 में आ रहे हैं, कुछ ह्यूमन T3 में आ रहे हैं, कुछ ह्यूमन T4 में आ रहे हैं। तो मुश्किल क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन वन ऑर्गेनिज्म इन मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। फिक्स कर देना पड़ता है, ये 6 T2 में 6, T3 में 6, फिक्स बता देना पड़ता। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नॉट एक्सप्लेन belonging of one organism to more than one trophic level. And one more thing, it explained food chain, ecological pyramid, और एक third point, it explained food chain, not food web. It explained food chain, not food web. फूड वेब एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये फूड वेब क्या है? देखो, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। इन केस ईगल को स्नेक नहीं मिला तो फ्रॉग भी खा लेता है। ईगल कैन आल्सो ईट फ्रॉग। Grass is also eaten by mice, and mice is also eaten by snake. Grass is also eaten by rabbit. Rabbit is also eaten by snake, and rabbit is also eaten by eagle. Rabbit is also eaten by eagle. तो ये क्या है? इंटरकनेक्शंस बिटवीन फूड चेन है। बहुत सारे फूड चेन का इंटरकनेक्शन है। इट इज कॉल्ड फूड वेब। एडवांटेज क्या है फूड वेब के? इंक्रीजेस वैरायटी ऑफ फूड। देखो, फूड वेब में आने से फायदा क्या हुआ? वैरायटी ऑफ फूड बढ़ गए यहां पर। फ्रॉग जो है ना, तो डेली ग्रास हॉपर खा खा के बस हो गया था उसको। अब ये फ्रॉग जो है
स्नेक कभी फ्रॉग खा रहा है, स्नेक कभी माइस खा रहा है, स्नेक कभी रैबिट खा रहा है, तो एक वैरायटी मिल रही है उसको. वैरायटी increases variety of food. And one more advantage of food web, increases biomass at each trophic level. अगर फूड चेन होता, फूड वेब नहीं होता सपोज, तो स्नेक एवरी डे ईटिंग फ्रॉग, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा पूरे फ्रॉग खत्म हो जाएंगे. Because every day snake is targeting frog. Targeting frog means frogs are not getting time to reproduce, time to increase their population. When a snake is eating rabbit, that means a snake is giving opportunity for frog to live, to reproduce. स्नेक जब रैबिट खा रहा है ना, तो स्नेक बोलेगा फ्रॉग को आई विल कैच यू लेटर, और स्नेक माइस को भी बोलेगा आई विल कैच यू लेटर. तो इससे क्या हो रहा है, बायोमास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. नेचर इज हैविंग फूड चेन और फूड वेब, नेचर इज हैविंग फूड वेब. अब यहां पर स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या है, ग्रास का T1, ग्रास हॉपर T2, फ्रॉग T3, स्नेक T4 भी हो सकता है, या ग्रास रैबिट स्नेक T3 भी बन सकता है. ये T4 T3 दोनों बन रहा है ये, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. समझ नहीं आ रहा आपको. ट्रॉफिक लेवल 2 is having how many types of organism here? Trophic level 2 is having how many types of organism? 2 या 3? रैबिट भी ट्रॉफिक लेवल 2 में आ रहा है, ग्रास हॉपर भी ट्रॉफिक लेवल 2 में आ रहा है, माइस भी ट्रॉफिक लेवल 2 में आ रहा है. करेक्ट है. ट्रॉफिक लेवल 3 में कौन आ रहा है, फ्रॉग आ रहा है, स्नेक भी आ रहा है, ईगल भी आ रहा है. ईगल T5 भी हो सकता है, ईगल T3 भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है. ईगल इफ इट इज ईटिंग फ्रॉग, अगर ईगल फ्रॉग खा रहा है तो ग्रास हॉपर फ्रॉग ईगल आ गया ना, T4 आ गया. वो थोड़ा सा ऐसा वर्कआउट करो, इकोलॉजिकल पिरामिड तक पूरा रिवाइज कर लीजिए. थैंक यू.